So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. Till now, all of you must have heard about the CCI, that is Cotton Corporation of India. A great opportunity for all the agri graduate. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि there is only one examination completely objective in nature. उसके बाद आपका बस डीवी एंड मेडिकल होता है, तो एक एग्जाम देना है एंड यू कैन गेट दिस जॉब. एंड सीट्स भी इसमें बहुत ही अच्छी हैं, काफी बड़ा नंबर है. सो आई वुड रिक्वेस्ट, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास. ओके, सो इस वीडियो में इफ यू आर समबडी जो थोड़ा सा डाउटफुल है कि नोटिफिकेशन तो आ गई है, कैन आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? So let me help you with this. In this video, I am going to share with you 45 days study plan for CCI. And यहाँ पे obvious question is, मैम क्या सिर्फ 45 days रह गए? So देखो students, if we follow the trend of last year, तो you will see जो closing date होती है notification की, उसके बाद you approximately have 1 month. तो although अभी जो closing date है वही 2 जुलाई है आपके, और उसके बाद आपको 1 month और मिलने वाला है, but 45 डेज आप लेके चलोगे, देन यू विल हैव अ प्लस टाइम टू रिवाइज. एंड ये टाइम मैं आपका नहीं परेशान करना चाह रही हूँ. आई वॉन्ट कि यू शुड बी रेडी. ठीक है, कि आप अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो एंड यू शुड बी रेडी टू गिव योर 100% इन दिस एग्जामिनेशन. सो इन दिस वीडियो नॉट ओनली आई विल गिव यू 45 डेज स्टडी प्लान, बट जितनी भी कॉमन क्वेरीज है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, रिलेटेड टू द सिलेबस, related to how to prepare these syllabus, what should be your sources, what are important topics, I'll share everything. Okay, so in this one video I'll try to provide you maximum information for this examination, ताकि आप बाकी के बचे हुए टाइम सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन में फोकस करो. So let's begin. So first we are going to talk about the eligibility. So here, if you are from agriculture background, you are eligible for 2 posts. These posts are junior commercial executive and junior assistant journal. So here you can see in this box I have added the snippet from the notification. So if you have around 45 marks if you belong to the category and 50% marks if you are from UR or OBC category, then you are eligible for this examination. And for junior commercial executive, you can see the total seats are 120. Similarly, if you are talking about junior assistant, here you can see total seats are 20, and you need to have BSc agriculture with 50% marks if you are from UR or OBC category, and 45% marks if you are from SC, ST and PH category. So if you are eligible, and I think most of you will be eligible for this examination, so I would again like to repeat, please don't let this opportunity pass. Prepare well for this examination. इसके अलावा this is for the educational criteria for the eligibility. If we are talking about the age, so if your age is between 18 to 30 years, you are eligible for this examination. Okay, so 18 से 30 की आपकी एज है. एंड व्हाट इज द कट ऑफ डेट? सो द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट. ठीक है, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से ही आपकी डे काउंट होगा. तो अगर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट को आप 18 से 30 के बीच में है, यू आर एलिजिबल. ऑल्दो अपर लिमिट के लिए देयर आर रिलैक्सेशन. सो इफ यू बिलोंग टू दी, सॉरी लेट मी डिलीट इट, लेट मी क्लियर इट फॉर यू. Okay, so here you can see if you are from SC or ST category, you have age relaxation of 5 years. If you belong to OBC non-creamy layer, then 3 years. If you are a person with the benchmark disability, then 10 years relaxation. Ex-serviceman, 3 years relaxation. And the domicile in the state of Jammu and Kashmir, 5 year of relaxation is being given. So upper limit पे भी आपको relaxation मिलता है. That means if you belong to the SC category, the upper age limit is 35. ओके, तो इस चीज को भी आपने नोट डाउन करना है, इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है. सो ये दोनों चीजें एलिजिबिलिटी के लिए हो गई. सो आई थिंक अब आप अगर एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. नाउ coming to the pattern, syllabus and number of question you are going to get in this exam. So I have already told you, यहाँ पे बस एक पेपर आपने देना है, that will be
दैट विल बी द मेन पेपर, उसी के बेसिस पे यू विल बी सिलेक्टेड. ओके, उसके बाद आपका डीवी एंड मेडिकल होगा, देन द फाइनल मेरिट विल बी आउट. हियर यू कैन सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सो यू आर गोइंग टू गेट टेस्टेड ऑन 5 यूनिट्स. द फर्स्ट यूनिट विल बी जनरल इंग्लिश, जहां पे कुछ टॉपिक मेंशन है, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, jumbled sentences, all these kind of question will be asked. If we are talking about unit 2, that will be of reasoning, जहां पे आपको syllogism, code inequality, then direction and distance, ordering and ranking, blood relation, DI, coding and decoding, deductive logic, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंपाइलेशन, पजल, पैटर्न कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीजें करनी है, पैटर्न कंप्लीशन. ओके, देन यूनिट 3 दैट विल बी क्वांट. क्वांट आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स करने हैं. देन यूनिट 4 इज जर्नल नॉलेज. यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडिया के, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी एटसेट्रा, ये टॉपिक आएंगे. देन यू हैव सब्जेक्ट नॉलेज, जिसका इंडिकेटिव सिलेबस आपको दिया हुआ है. Best thing is, I know some people are not good in quant, some people are scared of current affair, but here you can see सिर्फ 15 क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट 4 यूनिट. आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो पढ़ते हैं यूनिट 5, दैट विल बी व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन. जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे तो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनमें से आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन एंड मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं. दैट इज वाई मैं ये क्लियरली कहूंगी कि इन दिस एग्जामिनेशन यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एग्रीकल्चर फ्रॉम वेरी स्क्रैच. आपने चीजें रिवाइज करनी है, आपने चीजें मेमोराइज करनी है एंड आपने चीजें एग्जीक्यूट करनी है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर, सो हियर यू कैन सी फॉर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव यू हैव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, farm power and machinery, agriculture entomology, crop pest and their management, agriculture microbiology, soil microbiology, principles of agriculture agronomy, field crop, weed management, organic farming, dimension of agriculture farming, cotton procurement, cotton area, production, yield, cotton scenario, both domestic and international. Okay. Now in this examination I would say 60 marks का एग्जाम आ रहा है, बहुत कम टॉपिक आ रहे हैं, आपने अननेसेसरी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं. स्टिक विद द सिलेबस. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द असिस्टेंट, सो हियर यू कैन सी जर्नल असिस्टेंट में सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है, अप टू वीड मैनेजमेंट एंड इवन डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग इज सेम. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके साथ ऐड हो जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. इसके अलावा आई थिंक आप देख नहीं पा रहे होंगे, बट देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज ऑफ जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन. यस आई नो, जिसने बस सिलेबस एक बार देखा होगा दे मस्ट हैव मिस्ड इट आउट. बट यहाँ पे फॉर जूनियर असिस्टेंट यू ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम थोड़ा सा पॉलिटी की बात करते हैं. ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई है हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू रीड एंड आपका फोकस कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए, कहाँ 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्किंग, सो आपका पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है. There are effectively 120 question. You get around 120 minutes to solve all the question and negative marking is 1/4. Okay, so ये चीजें भी आपने mindful होके ध्यान में रखनी है. Now coming to the study plan. Now study plan देखो मैं आपको बता रही हूँ, but along with that I'm going to also share with you the tips. So सबसे पहले ये study plan है. I have divided this study plan according to the weeks and till examination because I said कि 45 days से तो ज्यादा है आपके पास. यहाँ तक भी if you are going आपके around 40 to 43 days होंगे, right? तो 40 उसके बाद जितने भी दिन आपके पास हैं that should be strictly for revision and doing new current affair. Now coming to how to prepare. Okay, so for first week you should start with PYQ and along with PYQ once you have understood कि exactly क्या requirement है exam की, then you should start doing the current affair. Now in this current affair what you should cover agri current affair, you should cover general current affair, you should cover world geography, Indian geography, all these kind of thing. Along with that you also need to do agriculture. Now ये agriculture, should I read something bulky material? The answer is no. क्या आपने हैंडबुक ऑफ ICAR की हैंडबुक खोल लेनी है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर? द आंसर इज नो. ठीक है, बहुत ही
वन लाइनर टाइप फैक्ट्स टाइप चीजें आपने पढ़नी है, दैट आई विल शेयर विद यू। उसके बाद सेकेंड वीक में आपने करंट अफेयर कंटिन्यू करके क्वांट पिक कर लेनी है, एग्रीकल्चर कंटिन्यू करनी है, इसको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखो, बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग दिस, एक चीज आप ध्यान में रखना, नोटिफिकेशन हैव क्लियरली मेंशन दैट इफ यू आर फ्रॉम यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, मिनिमम परसेंट यू नीड टू हैव इज 40%। तो अगर आपके 40% मार्क्स आउट ऑफ 120 नहीं आते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 48 मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं। इफ यू आर फ्रॉम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, देन 35% मार्क्स चाहिए। चाहे सीटें खाली रह जाए, बट इफ यू डोंट हैव 40 और 35% मार्क्स, यू विल नॉट बी एबल टू सी योर नेम इन द फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहां से देखो, मार्क्स हमें लेके आने हैं, मिनिमम मार्क्स जो लेके आने हैं दैट आर 40। अब इस एग्जाम में आपको कट ऑफ नहीं बताई जाती है, बट अगर इफ यू आर गोइंग बाय द ट्रेंड, यूजुअल एग्जाम्स में जो कट ऑफ रहती है दैट इज अराउंड 50 to 60%। तो उस अकॉर्डिंग इफ वी हैव टू टेल, तो आपको 60 से 70 मार्क्स लेके आने चाहिए। ओके, अब 60 to 70 देखो, 60 मार्क्स की तो सिर्फ एग्रीकल्चर आ रही है, सिर्फ एग्रीकल्चर आ रही है ना 60 मार्क्स की तो। एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग 70 मार्क्स, तो नेक्स्ट जो हमारी 4 यूनिट है जिसके 60 मार्क्स के है, वहां से आपने मिनिमम 10 मार्क्स तो लाने की कोशिश करनी है, विच इज इजी टास्क। ठीक है, अगर आपका करंट अफेयर वीक है, सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर आपकी क्वांट और मैथ्स वीक है तो रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपकी करंट अफेयर है। कहीं आपकी स्ट्रेंथ तो होगी ना, सो प्ले विद योर स्ट्रेंथ एंड जस्ट ट्राई टू कवर अप योर वीकनेस। उसको बिल्कुल एक्सपोज करके नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं करके आए क्वांट में, जो इजीएस्ट टॉपिक है उनको करके मार्क्स लेके आओ, यहाँ मार्क्स खींचो। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं पीवाईक्यू की। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं पीवाईक्यू की। सो पीवाईक्यू आपने कब के प्रैक्टिस करने हैं? 2020 एंड 2023। अब पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे? सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, देयर यू विल बी एबल टू फाइंड द पीवाईक्यू फॉर दिस एग्जामिनेशन। पीडीएफ आपकी होगी, थोड़ा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो तो आप करोगे ही, देन यू विल बी एबल टू गेट द पीवाईक्यू और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उनको बैठ के आराम से 1 घंटे आपने अच्छे से स्टडी करना है। पीवाईक्यू से आपने ड्रॉ आउट करना है कि अब फ्रॉम व्हाट टॉपिक हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। अगर किसी टॉपिक से, लेट्स से सॉइल माइक्रोबायोलॉजी से 5 क्वेश्चन आ रखे हैं, ऑन दी अदर हैंड फ्रॉम एग्रोनॉमी देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, तो वो आपकी प्रिपरेशन में भी रिफ्लेक्ट होगा। ऑल राइट, सो ये चीज आपने रखनी है पीवाईक्यू को देख के, जो कि इजीली आपको अवेलेबल है। देन टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर, व्हाट यू शुड डू, तो ज्योग्राफी आपको करनी है, ये करनी है, स्टैटिक भी कहां से करनी है मैं एंड में बताऊंगी, डोंट वरी। देन एग्री करंट अफेयर्स। अब एग्री करंट अफेयर में व्हाट यू शुड ट्राई टू कवर, स्कीम्स, कौन सी स्कीम अभी न्यूज में है या कौन सी स्कीम एक्टिवली वर्क कर रही है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर द एग्रीकल्चर। स्कीम हो सकता है यू नो इन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो, बट इट माइट बी फॉर एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर में भाई सोलर पंप लगने हैं। सो इन दिस केस यू नीड टू कवर दिस काइंड ऑफ स्कीम। देन रिपोर्ट्स आपने करनी है। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू नीड टू डू, एग्री सेंसस। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अगर मुझे आपको बतानी हो, दैट वुड बी एग्री स्टैट एट अ ग्लैंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। कॉटन का आपका जितना डेटा है, इंडिया की रैंक क्या है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग यू विल फाइंड इन दैट डेटा, जो कि गवर्नमेंट आपकी रिलीज कर रही है, राइट। इसके अलावा एडवांस एस्टिमेट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये तो आप लिख लो, ठीक है। एडवांस एस्टिमेट आपके एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस, एग्री सेंसस, ये तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिनमें से डेटा से क्वेश्चन आपका आ सकता है। देन आपको करंट करने हैं। करंट मींस एनी इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, समथिंग न्यू हैव बीन डेवलप्ड, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डेटा आ गया है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू कवर। देन जर्नल अवेयरनेस, यू नो अवार्ड किसी को कहाँ मिल रखे हैं, इफ समथिंग न्यू हैपन, somebody broke the world record or somebody won the gold medal, all these kind of thing you will cover under the general awareness. Then आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर करने हैं। देखो स्टैटिक पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, करंट अफेयर में आई वुड से 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं एंड वो भी सेग्रीगेटेड हैं काफी। सो जितना कर सकते हो करो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, लिमिटेड टॉपिक्स को करो, बट उनको अच्छे से मगअप करो, मेमोराइज करो, आपके फिंगर टिप्स पे डेटा होना चाहिए, दैट यू शुड ट्राई टू डू। नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ प्रैक्टिस करनी है। नाउ हाउ वी शुड प्रिपेयर, शुड वी प्रिपेयर जैसे हम नबार्ड में करते हैं, एएफओ में करते हैं? नो,
यहाँ एग्जाम कंप्लीटली आपका जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज जो यहाँ पे देखनी है, एग्जाम के क्वेश्चंस काफी फैक्चुअल होते हैं। ओके, सो रादर देन कि मैं डीप में अंडरस्टैंडिंग लूं, भाई मैं यहाँ ब्रांचिंग आउट कर रहा हूं, ट्राई टू मेमोराइज, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिंकअप करके पढ़ो। ओके, तो ये चीज आपने ट्राई करनी है थोड़ी सी, ये एग्जाम में आप देखोगे। देन यू शुड ऑल्सो डू द टॉपिक वाइज क्विज। जितने भी चैप्टर्स आप कर रहे हो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक एंड ऑल्सो प्रिपेयर वन लाइनर्स। देखो, जब भी आप फैक्ट्स रिमेंबर कर रहे हो ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कर सको। एंड हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट? once you read and try to make your own short fact sheet when you are sitting near the exam center, तब आप कोई बुक नहीं खोलोगे, then you will not be reading कि ठीक है मुझे क्या क्या आता है उसको रिवाइज करूं, नहीं, then you will see कि भाई 50% मैं भूल रहा हूं, let me just quickly see मैं कितना याद कर पा रहा हूं। क्योंकि जो चीजें आपको इनग्रेन्ड है, जो चीजें आपको याद हो चुकी है, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट, बट जो चीजें आपको याद ही नहीं हो रही है, अगर आप एग्जाम के सेंटर के टाइम उस पर फोकस करोगे, यू माइट रिमेंबर इट और उससे क्वेश्चन भी आ जाए, है ना। एंड एग्रीकल्चर में एक चीज फोकस में रखना कि कवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिविजन। लिमिटेड टॉपिक आपको सीसीआई पूछ रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। नाबार्ड का सिलेबस, भाई एआरडी का सिलेबस उससे ज्यादा है, एएफओ का सिलेबस उससे ज्यादा है, सीसीआई का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है। तो कवरेज के पीछे मत भागना, बट द फैक्ट्स दैट यू आर रीडिंग, पीवाईक्यू देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैं सब पढ़ूं, बट वंस यू डू पीवाईक्यू ऑफ 2020 2023 यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वांट और रीजनिंग में साथ में ही बता देती हूँ। देखो, पहली चीज शुरू करने से पहले कभी भी आपने बहुत ज्यादा टॉपिक्स की प्रैक्टिस या बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं करने क्वांट्स में। इसकी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट, मैक्सिमम क्वेश्चन इजी लेवल पे होते हैं एंड सम क्वेश्चन आर ऑन द मॉडरेट लेवल, ठीक है, इफ यू कंपेयर इट टू अदर एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सब इजी है, बट कंपैरेटिवली अब किसी भी एग्जाम से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इजी मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन रहते हैं इसके। ओके, तो आपने क्या करना है, सिलेक्टिव टॉपिक, प्लीज डू रिमेंबर क्वांट एंड रीजनिंग दोनों ही 15 मार्क्स के हैं, राइट। तो सिलेक्टिव टॉपिक आपने करने हैं एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। देखो, यहाँ बहुत ज्यादा टाइम बैरियर और टाइम लिमिट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि यू आर गेटिंग कंप्लीट डे टू डू क्वांट्स, ठीक है। पर क्वेश्चन में 1 मिनट आपको मिल रहा है, विच इज सफिशिएंट टाइम, बट यू शुड नॉट बी समबडी जिसको 1 घंटा लग रहा है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है एंड उससे जरूरी आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। लिमिटेड क्वेश्चन करो, बट जो क्वेश्चन आप कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ करो, नेगेटिव मार्किंग को आप लोग अवॉइड करोगे। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन मैं लिमिटेड टॉपिक तो करूं, पर वो क्या टॉपिक होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क। 15 क्वेश्चन में भी वर्क के 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, 1-2 क्वेश्चन यहां से निकल जा रहे हैं। नंबर सीरीज जैसे कोई टॉपिक्स करो, नंबर सीरीज तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको छोड़ भी रहे हो तो एवरेज कर लो, ठीक है। ये टॉपिक अगर आप कर रहे हो सिलेक्टिव टॉपिक और इनकी अच्छे से मॉक दे रहे हो तो अच्छे नंबर आप ले लोगे क्वांट्स में। ओके, सिमिलरली फॉर रीजनिंग सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के। क्या टॉपिक होंगे, सिलोजिज्म के टॉपिक करो, ब्लड रिलेशन के टॉपिक करो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करो, पजल करो, सिटिंग अरेंजमेंट करो, कोडिंग एंड डिकोडिंग करो। इन क्वेश्चंस को आप करोगे तो यू विल सी मोर देन 50% क्वेश्चन आप रीजनिंग एंड क्वांट्स में अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सो दिस शुड बी योर टारगेट कि इतने मार्क्स तो आ ही जाएं, अगर आप डर लगता है तो। इफ यू हैव टाइम, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल है, जितने भी सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स है सबको कर सकते हो। बट इफ योर क्वांट इज वीक एटलीस्ट इन टॉपिक की प्रैक्टिस करो, इफ योर रीजनिंग इज वीक एटलीस्ट इन टॉपिक की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश। देखो, इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है, रीजन बीइंग इफ यू आर समबडी जिसको लगता है कि इंग्लिश वीक है, स्लोली यू विल बिल्ड इंग्लिश फ्रॉम हियर। बट अगर आप इफ यू आर समबडी ना हिंदी मीडियम से पढ़ा या फिर ड्यू टू एनी रीजन ग्रामर आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपने डे 1 से ही इंग्लिश को 20 से 30 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 20 से 30 मिनट देना शुरू कर देना है। बट इफ यू आर समबडी जिसको ये वीडियो में इंग्लिश में भी बोल रही हो तो समझ में आ रहा है
हैव कॉन्फिडेंस इन यू। क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही ग्रामेटिकल रूल नहीं पूछते, ऐसा नहीं पूछते कि इस सेंटेंस में बताओ कौन सा पास्ट टेंस, कौन सा टेंस यूज हुआ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आते हैं। कैसे? इफ यू नो द ग्रामेटिकल रूल, हाउ दे कैन बी यूज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेंटेंस इंप्रूव कैसे करोगे अपनी ग्रामर यूज करके, एरर बताओ अगर ग्रामर आती है तो। दीज काइंड ऑफ थिंग विल बी आस्क्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट विल बी आस्क्ड। बट यस, इफ यू हैव टाइम, इंग्लिश करने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन करने का टाइम है, सो सिनोनिम, एंटोनिम, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं दैट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इनको करो। ओके, बट एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करो। अगर आपके सर्टेन टॉपिक, लेट्स से यू स्ट्रगल विद एडवर्ब्स, तो वो टॉपिक कर लो। डोंट नीड टू गो कि मैं पहले आर्टिकल से शुरू करूंगा तभी मुझे इंग्लिश आएगी। नो, एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करो। ठीक है, जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर करो, उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लास्ट वी आर गोइंग टू कवर सोर्सेस, क्योंकि ज्ञान तो बहुत हो गया बट करे कहां से, सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो फर्स्ट फॉर क्वांट, देखो फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगेन एंड अगेन आई हैव सेड, बैठ के बुक नहीं पढ़नी है। जितने भी टॉपिक आप हो, लॉजिक को समझो टॉपिक को, एंड उसके बाद प्रैक्टिस करो। जितनी यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, प्रैक्टिस ही आपके मार्क्स आएगी। एक किसी की वीडियो सुन ली क्योंकि वो टीचर बहुत पॉपुलर है, या किसी की वीडियो सुन ली क्योंकि कोई सर बहुत अच्छे लगते हैं, मैम बहुत अच्छे लगते हैं, सुन के नहीं होती है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। एक बार के लिए इंग्लिश हो जाए बट क्वांट और रीजनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है। यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड फॉर प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ प्लेटफॉर्म, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज इंडिया बिक्स। ये लोगो है, ये वेबसाइट है। पीडीएफ जो इसकी मिलेगी आपको, कहां से मिलेगी मैं बताऊंगी, बट जो भी पीडीएफ आपको मिलती है वहां से आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है, एंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के सिलेक्टिव टॉपिक जो हमने गए थे वो सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज जनरल नॉलेज। आई नो जनरल नॉलेज 15 मार्क्स की है, पर डर लगता है क्योंकि पता नहीं कहां से करे। सो इफ यू आर समबडी जो इसको स्टैटिक ज्योग्राफी समझ नहीं आ रही, सो एनसीईआरटी से करो। अगर बहुत टाइम नहीं है 8 से 10th की, यार देखो मैक्सिमम 8 से 10th की, इफ यू टॉक अबाउट तो 50 to 80 पेजेस की बुक होती है। ठीक है, उसमें भी आधे टाइम में डायग्राम्स होते हैं। समरी पढ़ लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो समरी पढ़ के कर लो। एंड सी, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जिसको आपने पढ़ा होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉइल इरोजन, हमने पढ़ रखा है, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप, हमने पढ़ रखा है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हमने पढ़ रखी है, वो ज्योग्राफी में भी कवर होती है। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ क्लाउड, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, हमने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा है। तो यहां से आप अगर टाइम है तो पढ़ लेना, नहीं है तो स्किप कर सकते हो, राइट। बट पीआईबी आई वुड से कि थोड़ा सा पढ़ो। देखो कब आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा आउट हुआ है, कब एडवांस एस्टिमेट आउट हुए हैं, उनको आप कैसे जानोगे? जब आप पीआईबी को फॉलो करोगे, बिकॉज पीआईबी विल बी टेलिंग यू कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में कितना आपका ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है, एमएसपी इस बार कितनी है राइस की। दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल ओनली कम टू नो व्हेन यू फॉलो पीआईबी, अ ग्रेट सोर्स फॉर ऑल द स्कीम्स, फॉर ऑल द मोस्ट रिपोर्ट, नॉट ऑल द मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट एंड द करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर के लिए एडिशनली कृषि जागरण वेबसाइट, ऑल्दो यहाँ पे बहुत से आर्टिकल, बहुत सा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, बट फर्स्ट आई वुड रिकमेंड इट फॉर कृषि जागरण फॉर द करंट अफेयर। सिमिलरली न्यूज़पेपर भी बहुत सारा करंट अफेयर आपका अवार्ड से रिलेटेड, बाकी जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अगेन आई वुड से, क्योंकि आपको पता है कॉटन प्रोक्योरमेंट, कॉटन यील्ड, कॉटन एरिया एक डेडिकेटेड टॉपिक है, तो कहां से कवर करें उसका करंट अफेयर। सो उसके लिए यू हैव एग्री स्टैट एट अ ग्लांस। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और कोई नहीं करनी है तो एटलीस्ट कॉटन का डेटा कि डोमेस्टिक सिनेरियो क्या है एंड वर्ल्ड में वेयर इंडिया स्टैंड, तो ये वाली चीजें आप करोगे। देन टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा बट ये है एग्रीकल्चर। सो उसके लिए फेवरेट बुक नीमराज सुंडा आपने फॉलो करनी है। 1 लाइनर, एमसीक्यू, सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। बट अगेन इस बुक को लेके एग्जाम सेंटर में नहीं जाना है, ठीक है। इस बुक से आपने छोटी से एक पेपर में फैक्ट शीट बनानी है, फैक्ट्स सारे के सारे लिखने हैं और उन फैक्ट्स को लेके एग्जाम में रिवाइज करना है। सो आई होप यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क द डाउट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अगर आप न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब चैनल में आपको मंडे से फ्री सीसीआई की एग्रीकल्चर की सीरीज भी हम रन कर रहे हैं, जिसको आप 2 PM पे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को हमारे साथ ज्वाइन करके देख सकते हो, ओके। एंड उस सेशन की सीरीज एंड अभी जो आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि सारी चीजों के स्क्रीनशॉट लोगे तो फोन भर जाएगा, राइट। तो उसके लिए यू विल हैव टू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर जो सेशन आने वाले हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, वो सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। तो आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है बट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू सो मच।
अगेन अगर आपको PYQs चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. PYQ एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट एट ऑल. PYQs आपको मिल जाएंगे. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप. अगेन आई वुड से अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन दिस एग्जामिनेशन. ऐसे मत सोचो कि नहीं ये कम है, ये ज्यादा है, मुझे ये नहीं करना, मुझे कॉटन का डेटा नहीं पढ़ना. भाई ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा? एक्सक्यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्लीज एक बार PYQs को डाउनलोड करो, एक बार अटेम्प्ट करो PYQ को, देन मेक योर माइंड कि मैं क्या इस एग्जाम को दूं कि नहीं दूं. एंड आई होप कि आप फेवरेबल रहेगा कि आप इस एग्जाम को देने के लिए रेडी होंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच for being here with me. अगर कोई डाउट है, again you can ask in the chat box. I hope you like this video. If you do let me know that in the comment box also. Okay, so I'll be ending this video. अगर आपको कोई और क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस एट hello@edutab.co.in. आप मेल करो, ओके, एंड यू कैन आस्क योर डाउट.